एंटी हिंदू जमातियों ने सनातन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ भारत में उनकी स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं, तो उधर बांग्लादेश में हरे राक्षस आपे से बाहर होते जा रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के नरसंहार से मन नहीं भरा तो ये जिहादी आदमखोर हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, मंदिरों को आग लगा रहे हैं, हिंदुओं का समूल नाश करके गजवाए बांग्लादेश के मिशन में जुटे हैं। लेकिन इन दिनों बांग्लादेशी उपद्रवी इनका ओवर कॉन्फिडेंस में मिसगाइड होते जा रहे हैं। जो भारत बांग्लादेश की बुनियाद की जनक है, जिसने उन्हें उनके समूल नाश से बचाया था, आज उसी भारत को धमका रहा है। बांग्लादेशी सेना का सनकी मेजर क्या जहर उगल रहा है भारत को लेकर, पहले आप वो सुनते हैं। मोदी जी, अमित जी एवं राजनाथ सिंह जी, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন ৭২ সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। ইস্টার্ন সেক্টর, ইস্টার্ন কমান্ড গোছানোর ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না। শুধু আমরা সশস্ত্র বাহিনী নই, ১৭ কোটি জনতা আছে আমাদের সাথে, আপনাদেরকে সীমান্তেই রুখে দিতে। সামরিক বাহিনী, ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি। আমরা রাবার ৫,০০০ সদস্য, এই ৫,০০০ সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, ২,৫০০ আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি ৩০ লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয়, তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি ৪ দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। আমরা দখল করে নেব, আসাম দখল করে নেব। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी टट्टू दुनिया को हिलाकर रख देंगे। ये ताकत इन्हें कहां से मिल रही है? भारत के टुकड़े करने की तकरीरें किस दम पर की जा रही है? ये बौखलाहट, ये पागलपन किस ताकत के दम पर मिल रही है इन जिहादी दिमागों को? इनके खतरनाक मंसूबों को डिकोड करना जरूरी है। हालांकि भारत पर इन गीदड़ भपकियों से कोई असर तो नहीं पड़ा, लेकिन खतरा शब्दों से नहीं सोच से है। अब भी सुनिए जरा क्या कहता है ये बांग्लादेशी कठमुल्ला। মধ্যে কিভাবে হত্যা নির্যাতন করছে আমাদের বাংলাদেশের যত সনাতনধর্মী ভাই বোনেরা আছে, তারা স্বাধীনের পর থেকে মায়ের কুলে বসবাস করতেছে। আমরা তাদের কোনো কাজে বাধা দেই নাই, বরঞ্চ বাংলাদেশের অনেক আলেম ওলামারা তাদের পূজা মণ্ডপ পাহারা দিয়েছে এবং এও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কেউ যদি পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙে তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে। সেই আলেম ওলামাদের বলতে চাই, আমাদের কিন্তু মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য নয়, মূর্তি ভাঙার জন্য। আজকে আপনারা বলতেছেন চট্টগ্রাম আপনাদের চাই, কেন যৌতুক চাচ্ছেন নাকি? মেয়ে তো আমরা বিবাহ করে দেই নাই, হাতে তুলেও দেই নাই, মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে, তাহলে যৌতুক কেন চাচ্ছেন? চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন না। আপনারা যদি চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন, আমরা কলকাতা, 7 সিস্টার, আগারতলা সবকিছু নিয়ে টান দেব এবং বাংলাদেশের মধ্যে পূর্ণ মানচিত্র আমরা বহন করব। ভারতকে খন্ড খন্ড করে ছেড়ে দেব। ভারতের মধ্যে পতাকা, কালেমার পতাকা উত্তোলন করে ছেড়ে দেব। ভারত শাসন করবে মুসলমান। আপনারা গোমূত্র সন্তানেরা, তোমরা জানোয়ারের সন্তান, তোমাদের সাথে আমরা কি লড়বো? তোমাদের গায়ে হলো মাথা, তোমাদের বাবাকে তোমরা বলতে পারো না, তাহলে তোমাদের গায়ে যদি মাথা হয়, তোমাদের বাবা স্বীকৃতি পেতে হবে ষাঁড়। আর যদি ষাঁড় তোমাদের বাবা না হয়, তোমরা পিতৃ বিচ্ছিন্ন, তোমাদের পিতৃ পরিচয় নাই, তোমরা জারজ সন্তান। नफरती बयानबाजियों की कड़ियों के जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटी हिंदू वाला पैटर्न एंटी भारत मॉड्यूल में बदलता जा रहा है। यह षड्यंत्र खतरनाक मोड पे आ चुका है। बांग्लादेशी हिंदुओं ने यह यातनाओं का लंबा दौर झेला है, अपने परिवारों को अपनी आंखों के सामने सुलगता देखा है, सड़कों पर जिहादियों का नंगा नाच देखा है,
लेकिन उनकी लाचारी को बांग्लादेश की सरकार, सिस्टम और सेना ने अपने बूट तले कुचल डाला है। संविधान की आत्मा की हत्या कर डाली है। इस पूरे इकोसिस्टम ने मिलकर बांग्लादेश को हिंदू विहीन करने का मिशन जो चलाया है और दुनिया बस देखती रही है। वो मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी का दिल नहीं जागा। लेकिन अब भारत में इस अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया है। भारतीय विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब वक्त आ गया है, बांग्लादेश को अपने पापों का हिसाब चुकाना ही होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारतीय हिंदुओं ने हुंकार भरी है। बांग्लादेश के मरते हिंदू पुकार रहे थे, मदद मांग रहे थे, या भारत में बैठे हिंदू भी इसी उम्मीद में थे कि जल्द से जल्द अपने हिंदू भाइयों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरहदों के दायरे ना होते तो शायद बचा ही लेते। लेकिन अब सरकार अपनी कूटनीति के जरिए और देश की जनता अपनी एकता के जरिए संदेश दे रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपको हम 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे हिंदू एकता के दम पर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू ना तो बटेगा, ना कटेगा और ना ही घटेगा। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर के राजौरी और मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठित होकर सड़कों पर उतर गए हैं। आपको इस भीड़ में कोई जाति नहीं दिखेगी, ये सब हिंदू हैं। किसी एंगल से देख लीजिए, हिंदू ही आपको नजर आएगा। जाहिर है, पूरी धमकियां देने वाले बांग्लादेशी कसाईयों के दिलों में हिंदुत्व जन सैलाब का ये शोर खलबली पैदा कर देगा। भारत के अलग अलग राज्यों से हिंदू एकता की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, उसमें कुछ खास नोटिस किया आपने? ये भीड़ किसी ने नहीं बुलाई थी, ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, ये तो बस हिंदू एकता का एक छोटा सा नमूना था। इस जन सैलाब और जिहादी जमातियों की भीड़ में फर्क साफ नजर आएगा आपको। यहां किसी ने हाथ में आपको हथियार नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये राक्षसों की भीड़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ में आपको वो हिंसा वाली भीड़ नजर आएगी जो हमेशा मरने मारने की होड़ पर रहती है। हिंदुओं को हिंसक कहने वाले और हिंदुत्व को बीमारी बताने वालों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। उनकी सोच बदलने के लिए यह तस्वीर ही काफी है। इस्लामी कट्टरपंथियों के सोच में ही गड़बड़ है। गैर मुसलमानों को काफिर मानो, इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगाओ, धर्मांतरण कराओ, ना माने तो थुक जिहाद के जरिए हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कराओ।